آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی میں آج بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ نے بتایا کراچی میں آج بھی شدید بارش کی پیش گوئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے کراچی کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احتیاط کے پیش نظر سکولز اور کالجز آج بند رہیں گے۔ کراچی میں مانسون کا پہلا سپیل زور و شور سے جاری۔ باران رحمت سے کراچی کا موسم تو اچھا ہوا، لیکن ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور نکاسی آب کا ناقص نظام شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ پانی جمع ہونے سے کئی سڑکیں اور انڈر پاس ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آنے کے نہ جانے کے کراچی کی باڑ لگا دی ان لوگوں نے بھائی۔ پانی بھرا ہوا اتنا پانی ہے، گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، عوام پریشان ہو رہی ہے۔ کراچی میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش۔ شام کے بعد تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش نے شہر کو پھر جل تھل کر دیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کٹی پہاڑی سے لینڈ سلائیڈنگ، مٹی اور پتھر پہاڑ سے زمین پر آ گرے۔ کٹی پہاڑی پہ یہ پتھر گرے مین کٹی پہاڑی پہ۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب سڑکوں پر بڑی مقدار میں پانی جمع ہو گیا۔ متعدد موٹر سائیکلیں بند، شہریوں کو گھر واپسی میں پریشانی۔ ٹریفک پولیس نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ بائک خراب ہو جاتی ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہے، بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے بھائی۔ یہاں تک کہ پانی آیا ہوا ہے، گٹریں کھلی ہوتی نظر نہیں آتی پانی میں۔ آندھی اور تیز بارش سے شارع فیصل کے قریب درخت، گلشن حدید میں موبائل کمپنی کا ٹاور گر گیا۔ شفیق موڑ کے قریب ایک بچہ بجلی کے کھمبے سے چپک گیا۔ قریب موجود افراد نے بچے کو بمشکل کھمبے سے دور کر کے بچا لیا۔ طوفانی بارش ہوتے ہی شہید ملت انڈر پاس روڈ بند کر دیا گیا۔ ناظم آباد انڈر پاس اور سہراب کوٹ انڈر پاس بھی بند ہے۔ کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی سمیت کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ منگل کو بارش کے بعد سے شہر میں بجلی کا بریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے بیشتر علاقے 36 گھنٹے سے بجلی سے محروم ہیں۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور گلستان جوہر بلاک 9 میں 34 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ نانک پاڑا، یوسف گوٹ، رام سوامی میں 22 گھنٹے اور سعود آباد، خدا کی بستی، ابراہیم حیدری، شانتی نگر اور اسٹیڈیم روڈ پر 28 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کیماڑی، اعظم بستی اور دیگر علاقوں میں بھی بجلی بند ہونے سے عوام اذیت کا شکار ہیں۔ بجلی کی طویل بندش پر شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس پر انہوں نے سڑکوں پر نکل احتجاجاً سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ صارفین کا کہنا ہے گھروں میں پانی نہیں ہے، بچوں اور بزرگوں کو شدید اذیت کا سامنا ہے۔ کراچی میں 2 روز کے دوران تیز بارش اور 16 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ کرنٹ لگنے سے 6، ڈوبنے سے 4 اور دیوار گرنے کے واقعات میں 6 اموات ہوئیں۔ 2 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ شاہ فیصل کالونی میں کرنٹ لگنے سے 2 بھائی جاں بحق ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ کے الیکٹرک کے سی ای او اور افسران کے خلاف درج کر لیا گیا۔ کراچی میں تیز موسلادھار بارش، اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ 2 روز تک معمولات زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جیسے ہی بارش ہوئی اس پیل کے ساتھ 11,000 کے قریب نفری پوری رات لگی رہی ہے جو کھدائی ہوئی تھی، خاص طور پہ سوئی سدرن گیس والوں کی۔ روڈ کافی جگہوں سے نیچے بیٹھ گیا اور زیادہ پانی میں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی گاڑیوں کو حادثات ہوئے۔ شہر قائد میں ڈوبنے کے 6 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گلشن معمار، نیو کراچی، گرو مندر، پی ای سی ایچ ایس میں 4 شہریوں کی لاشیں ندی نالوں سے نکالی گئی۔ سراب گوٹ اور لیاقت آباد میں بھی 2 نوجوان ندی میں ڈوب گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ 2 بچوں کے ڈوبنے پر اس وقت بحری خدمات کی ٹیم کام کر رہی تھی، جس میں ایک لالو کھیت اور ایک سوراب گوٹ پہ۔ شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، ڈیفینس اور نیو کراچی میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں 6 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ شاہ فیصل میں پیش آیا جس میں کرنٹ لگنے سے بجلی کے پول سے کرنٹ لگا ہے اور 2 نوجوان بھائی جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جو کرنٹ لگنے کے واقعات پیش آئے ان میں گلی محلوں میں گزرنے والے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ گلستان جوہر میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 خواتین اور 3 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی گھر کی دیوار گرنے سے 8 سالہ بچہ جان سے گیا۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔
शहर का बड़ा मसला इख्तियारात का तकसीम होना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कोरंगी कंटोनमेंट एरिया है लेकिन यहाँ का नाला मुझे ठीक करना है, सड़क मुझे बनानी है, पानी मुझे देना है, सारे सवालात भी मुझसे होने हैं। कंटोनमेंट वाले सिर्फ टैक्स वसूल करेंगे। शहर में जहाँ सड़कें टूटी वो जिन लोगों ने बनवाई उनका कोई नाम नहीं लेता। बारिशों के बाद जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को कहेंगे सड़कें ठीक करवाएं, ऐसा ना किया तो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। जिस जगह पे आप कह रहे हैं ये कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी है, दिस इज द प्रॉब्लम। इस वक्त आपको कंटोनमेंट बोर्ड के CEO साहब पे नजर नहीं आएंगे। ये सवाल सारे मेरे लिए, ये नाला भी मैं ठीक कराऊंगा, ये आखिर में सड़क भी मैं ही रिपेयर कराऊंगा, यहाँ तक पानी भी मैं ही पहुंचाऊंगा, सब कुछ ही अगर हमें करना है। टैक्स क्यों लेते हैं वो लोग? वो टाउन की रोड थी लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने वो रोड बनाई थी। पता नहीं क्यों वो बावजू है, नेक है, फरिश्ते हैं। 14 अरब रुपए टाउन्स को मिले हैं, वो इसलिए मिले थे कि रोड कटिंग है और आपको रोड को रिस्टोर करना है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये गड़बड़ करते हैं वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी हमारा तो कोई इसे लेना देना नहीं है। जैसे ये बारिश का सिलसिला खत्म होगा या तो उनको कायल करेंगे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को कि भाई ये रोड रिपेयर करके दो, अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करें। MQM पाकिस्तान का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमती इक़दामात ने कराची को सिंध से अलग करके रख दिया। शहर का कचरा साफ कर लिया जाए तो 40 मिलीमीटर कैपेसिटी वाले नाले सारा पानी निकाल सकते हैं। वज़ीर आला को फ़ोन करने से वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हमसे भी राबता करना होगा। अगर कराची का कचरा वक्त पर उठ जाए, 200 क्या 400 मिलीमीटर बारिश भी हो तो ये 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी वाले नारे इस पानी को निकाल के नदी नालों में और समंदर में ले जाके फेंक सकते हैं। अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, कराची पर कब्जा तुम्हारा, सब कुछ तो तुम्हारा है, बचा क्या है? ये तनकीद नहीं, ये जायजा रिपोर्ट है। कराची को आफतज़दा इलाका डिक्लेयर करें, सिर्फ चीफ मिनिस्टर को फोन करके वजीर आजम की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। गवर्नर सिंध खालिद मकबूल सिद्दीकी है, उन्हें भी फोन करके हौसला देना होगा। भाई हमारे गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को फोन किया लेकिन हमें किसी का फोन नहीं आ रहा। कराची रेन इफेक्टिव पैकेज है कोई? कहाँ है हुकूमत सिंध? कराची को तुमने सिंध से अलग कर दिया है। तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, हुकूमत एक तरफ है, मैं एक तरफ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल को टेलीफोन। खालिद मकबूल सिरीकी ने वज़ीर आज़म से कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील की। कहा बारिश के बाद की सूरत हाल पर कराची में हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम किए जाएं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत कर दी। कराची में इंतजामिया ने बरसाती पानी की निकासी के लिए नई ड्रेनेज डिवाइसेस मुतारिफ करा दी। मेयर कराची कयूमाबाद में फुटपाथ पर बैठकर अपनी निगरानी में पानी की निकासी कराते रहे। ये नई डिवाइस कौन सी हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा आब पाशी के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा तोंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे जबकि सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज कंट्रोल रूम की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,42,000 क्यूसेक और इखराज 2,56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। काबुल नदी से दरियाए सिंध में पानी की आमद 4,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,96,865 क्यूसेक और इखराज 3,07,503 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कोटरी बैराज में पानी की आमद 1,20,592 क्यूसेक और इखराज 1,13,717 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना नाकाबिल कबूल है। दरिया में होटल बनाने की इजाज़त देने की गलती की कोई माफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब। कहा दुनिया में कहीं कानून नहीं कि दरिया किनारे होटल बना दे। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी बनाना होगी। हमारे वज़ीर आला जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं। वाज़े हदायत दी है, कोई तमीज़ नहीं करनी। आपने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है। ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है। ना ये कोई सियासत है, ना ये कोई रियाकारी है। अभी हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई
जिस में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे। नालों के दरिया के साइडों पर बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह खतरनाक होटल्स बना दें जहाँ पर कल हुसैनी आई है, 2022 में भी आई थी, अब 2025 में आई है। सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और चल जाने हैं। इंसानी जो ब्लंडर है इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं वापस जाकर मीटिंग बुलाऊंगा, चारों सूबाई वज़ीर आला दावत दूंगा, एक फैसला करना है, वो कानून वो पॉलिसी बनानी होगी ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की है। तर्जुमान ने बताया आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदही से काम जारी रखें। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जिहत करार दिया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ है। कराची में बारिश के बाद बेशतर सड़कों पर ताहाल पानी जमा है। जहांगीर रोड से गुरुमंदिर आने वाली रोड पर बारिश का पानी जमा होने से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं गुरु मंदिर मेन चौरंगी है। जहांगीर रोड से गुरु मंदिर आने वाला ये रास्ता है और मेन गुरु मंदिर चौक के बिल्कुल सामने यहाँ ये सूरत हाल है कि एक तो पानी जमा है, दूसरा यहाँ पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। जो मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी हादसात का शिकार हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से गुजरना भी दुश्वार है। और ये सिर्फ एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, शहर की बेशतर सड़कों पर इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ बारिश का पानी जमा है, उसके अलावा न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, नाज़िमाबाद के इलाके हैं, अंडर पासेस में भी अब तक जो है वो पानी जमा है। तो ये इस वक्त मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फराहमी जो है वो बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी से दुचार हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत है। सरजानी के इलाके में भी जो है वो कई फीट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो घरों की छतों पर महसूर हैं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त शहर से जो पानी की निकासी है उसको मुमकिन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से जो सड़कों से गुजरने वाले हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। केपी में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन हर तरफ बर्बादी की दास्तान छोड़ गया। क्या घर, क्या बाजार, गांव के गांव उजड़ गए। सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। लोग अभी तक मलबे तले अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केपी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब के अलावा मजीद 2 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना को बताया कि पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। शोहदा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है। मुतासरा इलाकों में मराकज़ सेहत फौरी तौर पर बहाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने राबता सड़कों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत की और कहा मुतासरीन को नए मकान बनाकर देंगे। जिनके कारोबार मुतासर हुए उन्हें पैकेज दिया जाएगा। केपी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। पाक फौज इंजीनियर्स कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में मसरूफ हैं। पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी है। पाक फौज की मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा लूज पोरन की 20 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी। पोरन गांव का जमीनी राबता बहाल हो गया। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर लोहा मनवाया। उनके एक दौरे से अरबों रुपए की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाला की दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। शौक था समेत आपके जमहूरियत चैंपियन बनने का, तो जमहूरियत के मजे आप ले क्या करें, फिर और आगे मजे लें। ये जमहूरियत ने आपको दिया है ना, और वही जमहूरी शक्लें हैं
मैं पैदा हुआ यही जमहूरी शक्लें, मैं बड़ा हुआ ये जमहूरी शक्लें, मैं जवान हुआ यही पुरानी शक्लें, आज मैं बुढ़ापे की तरह चल पड़ा हूँ वही शक्लें। सूबाई हुकूमतों ने भट्टा बिठा दिया बस। आज तक कोई सिविलियन हुकूमत का सिविलियन आदमी समेत सैनिट के अरबों रुपए के ट्रिप्स करते हैं, एक पाकिस्तान के लिए धेले का फायदा लाके दिखाए। यही आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मार्का मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ। अपनी रिकग्निशन कराई चीफ ने, पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड, वो इंटरनेशनल फिगर बन गए। अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है। ये जंग नहीं जीती उन्होंने, पाकिस्तान की पूरे कौम का दिल जीत लिया। करप्शन करप्शन पूरे पाकिस्तान में, क्या करप्शन आज रुक गई पाकिस्तान में? मैं तो आपको मसला और उसका हल बता सकता हूँ। आपको 18वीं तरमीम को रीएड्रेस करना पड़ेगा। आपको 18वीं तरमीम नहीं करनी, आप एनएफसी को तो आपको रीएड्रेस करना ही करना है किसी भी हालत में। फेडरल गवर्नमेंट का तो रोल नहीं है ना, पैसे जमा करती है, ठकाठक कर्जे लेती है, वो इनको दे दी। इन्होंने पूरे मुल्क में तबाही मचाई, गंदम की तबाही कर दी है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया इस मुल्क का, कीड़े पड़ गए उसके अंदर। मैंने 26वीं तरमीम वाले दिन आपको कहा था कि 27वीं आएगी, तो होनी है। पाकिस्तान की बेहतरी कौन रोकेगा उसे? उस कौम के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने गोलियां खा के अपनी जानें दी है, बच्चे छोड़ गए पीछे, इस मुल्क की खातिर, इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाए। इसको प्लीज समझे। हम फरिश्ते नहीं थे, गलतियां हुई होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था। बानी और सब ने इसकी मजम्मत की। चीनी वजीर खारजा वांग शी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वजीर खारजा इसहाक डार के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टोकमन से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा जापान की तरक्की का मॉडल वो पंजाब में लागू करना चाहती हैं। ज़लज़ले से निमटने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जापानी वज़ीर ने कहा पंजाब में 120 से ज़ायद मंसूबों का आगाज़ काबिल तहसीन है। पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। उन्होंने सैलाब से केपी में जाने नुकसानात पर हमदर्दी का इजहार किया। गवर्नर सिंध की शहीद राशिद मिन्हास के अहले खाना से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा शहीद राशिद मिन्हास की फैमिली हमेशा पाकिस्तान की बात करती है। भारत को पैगाम है पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना। मुसल्लह अफवाज और पाक फजाइये को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराकर उनका गुरूर में खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने टोक्यो में मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेस वे सेक्शन का दौरा किया। जापान का कदीमी नेहोबाशी ब्रिज पैदल वॉक करने वालों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। नेहोबाशी टोक्यो का मशहूर वाटर फ्रंट टोक्यो स्टेशन और दीगर डिस्ट्रिक्ट को मुंसलिक करता है। ब्रिज की कदीमी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अंडरग्राउंड एक्सप्रेस वे अगले चंद साल में मुकम्मल हो जाएगा। नेहोबाशी एक्सप्रेस वे जापान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला मरियम नवाज को नेहोबाशी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के माहौल दोस्त असरात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नेहोबाशी रीडेवलपमेंट के हब विस्टा का भी जायजा लिया। सालाना पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की क़यादत में आला सतह वक्त गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा था। आज सालाना पाक चीन तस्वीराती मुज़ाकरात का छठा दौर होगा। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के शोबों में तबादला ख्याल करेंगे। स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी, सियासी, दिफाई और सलामती से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफती और अवामी सतह के राबतों पर भी बातचीत होगी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी है। बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बड़ी शाहराहों से पानी निकल गया। मीरपुर खास में भी शदीद बारिश हुई, वहां भी बिजली का निजाम दरहम बरहम है। सुरजानी टाउन में फैमिलीज को घरों की छतों पर बैठे देखा। मेयर कराची और हुकूमत सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। जमात इस्लामी भी शहर में कैंप लगाए लोगों की मदद करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पूरे शहर को है वो लाइट, बिजली नहीं है शहर में। और मैं यहाँ पर अपने मीरपुर ख़ास के भाइयों से भी माज़रत ख्वाह हूँ और उनके गम में शरीक हूँ कि वहाँ बारिश भी हुई और बिजली का निज़ाम धर्म बरम है। हैदराबाद के शहर लतीफ़ाबाद में भी गलियों में पानी जमा है बारिश से और लाइट ऑफ है। इसी तरह कराची के बेशतर इलाकों में कल से बारिश नहीं है। उधर पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फसलों के इमदादी रेट मुकर्रर ना होने पर सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत की तरफ से गंदम का इमदादी रेट मुकर्रर होने तक गंदम की काश्त के बायकॉट का ऐलान कर दिया। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम के इमदादी रेट मुकर्रर न होने पर गंदम की फसल का बाइकाट करने की तहरीक का आगाज कर दिया। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि अगर हुकूमत ने 4500 रुपए फी मन गंदम का रेट मुकर्रर ना किया तो आइंदा साल किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। सानू साड़ी फसल का रेट चाहिए, सानू असी गंदम इसे सूरज काश्त करांगे अगर मेरे काश्तकार 4500 रेट देन और पास को फूड नू बहाल करन। किसानों का कहना था कि पाकिस्तान की मौशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। अगर साड़ी गवर्नमेंट ये रेट 4500 का ऐलान नहीं कर दी तो आज तो गंदम का बाईकाट का ऐलान करते पे पासको फूड नू भी बहाल किया जाए। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पासको और फूड को फिलफौर तौर पर बहाल करते हुए ज़रूरी अद्वियात और खादों की कीमत कम की जाए। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। ओकाड़ा के नवाही गांव में ससुरालियों ने शादीशुदा लड़की को फरोख्त कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 साल लड़की को जेठ, देवर और ससुरालियों ने 50,000 में फरोख्त किया। लड़की को खानेवाल के इलाके कच्चा खूह में जिस्म फरोश गिरोह को फरोख्त किया गया। लड़की को 1 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। मौका मिलने पर फरार होकर घर पहुंच गई। मुतासरा लड़की के शौहर इकराम ने मुकदमे के लिए DPO को दरखास्त दे दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है। वालिदैन ने इतराफ किया कि हमारे बेटों आसिफ और अकरम ने बहुत बहू को फरोख्त किया। अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता और इंसान दोस्त रिटायर्ड जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो अपने हमदर्दाना अंदाज, मुनसिफाना फैसलों, अदल और इंसाफ और रहम दिली के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज लबलबे की कैंसर में मुब्तला थे और कई दिन से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनका आखिरी वीडियो पैगाम फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गया, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों को मशवरा दिया कि हमें नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमारा कल हमारे लिए क्या ला रहा है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंजॉय करें और जिएं। अब तक के लिए इतना ही।